बहुत ही प्रोत्साहनक जनक वचन हमने सुना है And we heard a very encouraging word today कि किस रीति से परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार करते हैं। that how God prepares His church. और हमने देखा किस रीति से दाऊद ने उनको जवाब दिया। And we see that how David responded. देखो यहाँ पर शाऊल ने जब उससे प्रश्न किया, अरे तू तो लड़का है, And when Saul questioned him that you are just a boy, तो उसने क्या किया? then what did David say? उसने अपनी टेस्टिमनी शेयर की। And then he shared his हम testimony. देख सकते हैं वो And we can see that 17 अध्याय chapter 17, 1 Samuel chapter 17. उसका 34 वचन में Verse 34. वहाँ पर दाऊद कहता है कि जब मैं भेड़ बकरी चराता था Here David says that when I was a shepherd, तो वहाँ पर भेड़ भालू आते थे, शेर आते थे, then lions used to come and bears used to come. और वो भेड़ बकरी को पकड़कर ले जाते थे। And they used to take away the sheep. तब वो कहता है कि तब तेरे दास ने परमेश्वर यहोवा के बल से उनको वहाँ से बचा कर लाया। And then your servant David with God's help rescued the sheep. तो वो उसकी टेस्टिमनी सुन के बोलता एग्री हो जाता है। And Saul heard his testimony and agreed. वो बोलता है हाँ तो तू जा, यहोवा तेरे साथ रहेगा। And he says, okay, you go, God will be with you. उसने अपनी टेस्टिमनी शेयर की कि किस रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है। And he shared his testimony that how God worked in his life. नया करार में हमारा दुश्मन कौन है ब्रदर्स एंड सिस्टर? In the new covenant, who is our enemy? बाइबल इफिसियंस अध्याय 6 में कहता है शैतान, In Ephesians chapter 6, it says that the devil is our enemy. अंधकार की शक्ति The powers of darkness is our enemy. जो स्वर्ग में से नीचे उतरकर काम, उसकी स्पिरिट काम करती है। And which has come down from heaven and she is working here on this earth. तो वहां पर लिखा हमारा युद्ध कोई शरीर और लहू के साथ नहीं है। And there it says that our battle is not against flesh and blood. हमारे कोई चर्च के भाई या बहन के साथ नहीं है। And our battle is not against any brother or sister in church. संसार के कोई भाई बहन के साथ नहीं है। It's not against any brother and sister in this world. हमारा युद्ध सिर्फ एक ही के साथ है, शैतान के साथ। And our battle is against only one person, and that is the devil. यीशु को अच्छी तरह मालूम था, इसके लिए क्रूस पर मरते समय उसने कहा पिता उनको क्षमा कर, वो मेरे दुश्मन नहीं है। That's why and Jesus knew this very well, and that's why when he was dying on the cross, he said, "Father, forgive them, because these people are not my enemies." कई बार हम भूल जाते ब्रदर्स एंड सिस्टर, Sometimes we may forget, brothers and हम sisters. एक भाई और बहन को अपना दुश्मन समझते हैं। We may think a certain brother or sister is our enemy, हम सोचते हैं ये बहन मेरा दुश्मन है, and we think, okay, this sister is my enemy, ये भाई मुझे गलत बोलता है हमेशा, and this brother always says ये bad मेरे things. बारे में बोलता रहता है, ये अच्छा नहीं है, And he's always saying against me, and that's why maybe he's bad. ये हमेशा मुझ पे दोष लगाता रहता है। He's always blaming लेकिन me. आपको पता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? But you know who is our biggest enemy? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, In Revelation chapter 12, वहां पर आप देखो there it says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसका 11वां वचन, Revelations 12 verse 11. And they overcame him by the blood. एक मिनट, 10 का सेकेंड पार्ट, वहां पर लिखा है क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, Here it says, for the accuser of our brethren, वो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है। who accused them before our God day and night. देखो हमारा दुश्मन है, वो रात दिन क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने आप पे और मुझ पे दोष लगा रहा है। And here it says that the person who is our enemy is the devil, who has been accusing us day and night in कौन front है of वो God. दुश्मन? कोई भाई बहन के बारे में नहीं लिखा है, Here, who is that enemy? It's not about one person or ये brother or शैतान के बारे sister. में लिखा है। It's written about the वो devil. दिन रात आप पे और मुझ पे दोष लगा रहा है। Day and night he is accusing us in front of God. तो कोई भाई बहन हमारा दुश्मन नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। So no brother and sister is our enemy. ये एक ही व्यक्ति है जो शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है। And the only enemy is this Satan, who is और कब always लगाता है? accusing us. रात और दिन मिलकर पूरे दिन रात वो यही काम करता है। And when does he do it? He does it full day and night. और उस पे जयवंत कैसे हो गए? And how will we overcome him? दो चीजें वहां पर। There are two things written 11वां here. वचन आप देखो, In verse 11 it says, यीशु मसीह के लहू के द्वारा
we overcame him by the अगर blood हमारे लाइफ of में हमको Jesus. विक्ट्री पाना है तो उसमें यीशु मसीह का लहू का कार्य होना चाहिए। If you want victory in our life, it will be only through the blood वहां of पर हमारा Jesus. सामर्थ काम नहीं आएगा। There our strength won't work. शैतान हमसे बहुत ताकतवर है, The devil is much more powerful than us. हम उसको अपने ताकत से कभी नहीं हरा पाएंगे। We will never be able to defeat him with our own हमको strength. कितने साल का एक्सपीरियंस है? How many years of experience do we उसको have? हजारों साल का एक्सपीरियंस है। He has an experience of thousands चुटकी of में years. हमको डिसीव कर सकता है वो। In a fraction of a second, he can हम defeat सोचेंगे हम us. शैतान को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कभी नहीं होगा। We may think, okay, I'll do this to Satan, I'll do that to Satan, but never it can happen. वो क्षण भर में हमको डिसीव कर देगा। In a second, he can deceive us. लेकिन बाइबल कहता है हम विक्ट्री कैसे पा सकते हैं? But the Bible tells us how we can overcome. एक चीज से वो डरता है, And there's one thing that he fears. यीशु मसीह से। He fears Jesus. एक नाम से वो कांपता है, And in that name, the devil और जब हम उसके trembles. ब्लड का नाम लेते हैं And when we take the name of the blood of Jesus, वो हमारे पास से भाग जाता है। then the devil will flee from मैंने there. एक भाई का, वो पास्टर था, उसका एक गवाही सुना था। I heard a testimony of a brother शैतान ने बहुत सारा गोनी भर के उसके सामने लाकर रख दिया। that the devil had brought to him big sacks of things and kept it in front of him. तो उसने कहा ये सारे तेरे पाप है। And he said, all these sacks are full of your sins. उसने वो ओपन करके देखा तो उसने जिंदगी भर जो पाप किए थे सब उसके अंदर भरा हुआ था। And when he opened the sack and saw, he really saw all the sins that he had committed in his life. तो शैतान उसने उसको इतने सारे पाप दिखा दिए। And the devil showed him all his sins, so many. और वो पास्टर कहता है आई एग्री, And the pastor said, yes, I ये सारे agree. पाप मेरे ही है। And he said, yes, all these sins are mine. लेकिन इसके आगे एक नोट लिख दे, And he said, okay, write one more note in front यीशु of मसीह this. के बलिदान से ये सारे पाप मेरे धुल गए। That by the blood of Jesus Christ, all these sins have been washed यीशु away. मसीह के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए। By the blood of Jesus Christ, all these sins have been forgiven. वो शैतान वहां से भाग चले गए। And the devil fled from there. सो हमारे पास एक विक्टोरियस चीज है, सामग्री है जिससे हम शैतान से लड़ सकते हैं। So, brothers and sisters, we have something very victorious in strength in us, which can द overcome ब्लड ऑफ the devil. क्राइस्ट। And that is the blood of Christ. और दूसरी चीज क्या है? And the second thing is वहां पर लिखा है योर टेस्टिमनी, that it is our testimony. हमारी गवाही। Our testimony. दाऊद ने क्या दिया? अपनी गवाही दिया। And there we can see David also gave his testimony. कई बार कोई हमको, जैसे भाई ने कहा, डिस्करेज करते हैं। Many times people discourage us. हम सोचे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। We must think that what God has done for us. मैं श्योरिटी से कहता हूँ हम सबके लिए प्रभु ने कुछ ना कुछ किया है। And I can tell surely that God has done something or the other for us. वो कार्यों को आप याद करो, Remind yourself of those words. इससे हम जयवंत हो सकते हैं। And with that we can overcome. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I would like to read from Romans 8:31. और रोमियो अध्याय 8 का 31 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। Romans chapter 8 verse 31. रोमियो 8 उसका 31वां वचन। What then shall we say about these things? If God is for us, who can be against us? तो हम इन बातों का विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? It says here that if when we become children of God, God puts us in His kingdom and He makes us His children. और यहाँ पर ऐसे लिखा, वचन में ऐसे लिखा है, जब परमेश्वर की संतान बनते हैं तो वो अपने राज्य में लेता है और हम उसकी संतानें ठहरते हैं। So what does it mean to be children? तो संतान होने का अर्थ क्या होता है? I realized some years back, और कुछ वर्षों पहले मैंने इस बात को जाना। I realized that when I look at my son, that every time he makes some mistake or does some mischief, I get angry, but when I see him, I forget all my troubles, all my tension, and I look at his face and smile. I love him and he also loves me. और कई बार मैंने पिछले अपने बच्चे को देखा है, जब मेरा बच्चा मस्ती करता है या कुछ मुझे ऐसे गुस्सा आता है उसके ऊपर, लेकिन जब उसका हंसी मैं देखता हूँ और जब वो मुझसे प्यार करता है वो देखता हूँ, तब मैं पिघल जाता हूँ और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। So that is why, I want to just share that God loves us. God loves us so much, and that is why He allows suffering in our lives. That is why He allows trials in our lives. और मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो कई बार परीक्षाओं से और कई बार ताड़नाओं से हमें परखते हैं।
if we have any weakness in any area, any sin that dominates us, He gives us repeated tests in that area so that we can get 100% by God's grace. कोई चीज़ है हमको बार बार हम जिसमें गिरते हैं या हमारी कमजोरी बन जाती है, तो परमेश्वर हमें परखते हैं बार बार वो चीज़ों पे, ताकि हम वो चीज़ों में बलवंत होते जाए. I'm not just talking about the sins of the flesh, I'm also talking about the sins of the spirit, like pride, anger, selfishness, and so forth. और मैं सिर्फ शरीर के पाप के विषय में नहीं कहता हूँ, लेकिन आत्मा से जो हम पाप कर सकते हैं, जैसा कि हम घमंड करना, हमारे अंदर बुराई को लाना, और अधिक इसी रीति से जो पाप हम करते हैं उसके विषय में. And in conclusion, I'd just like to read this verses so that you'll understand what God is telling you. और आखिर में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप समझ सके परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं. Please ask the Holy Spirit to tell you what He's saying. तो आप परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहते हैं. Indeed, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, freely give us all things? और जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा. Who will bring any charge against God's elect? परमेश्वर के चुने हुए को दोष कौन लगाएगा. It is God who justifies. परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है. Who is the one who will condemn? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा. Christ is the one who died, and more than that, He was raised, who is at the right hand of God, and who is also interceding for us. मसीही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है. And this is what I'm saying we need in this time now. Who will separate us from the love of Christ? Will trouble or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? और यहाँ पर उसके 35 वचन में हम देख सकते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव, अकाल, लंगाई, जोखिम या तलवार. As it is written, for your sake we encountered death all day long. We were considered as sheep to be slaughtered. और जैसे लिखा है, तेरे लिए में हम दिन भर घात किए जाते हैं और वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं. ब्रदर अभी मैं 3 वर्स एक साथ पढ़ूंगा, फिर बाद में आप 3 से एक बार पढ़ेगा, तर्जुमा दोगे. No, in all these things we have complete victory through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor heavenly rulers, nor things that are present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. और 37 से 39 वचन तक, परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई ऐसी सृष्टि जो परमेश्वर के प्रेम से जो हम पर प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. यीशु को धन्यवाद देती हूँ. I want to thank God. मैं हमेशा वचन के बीच में बहुत सारा टाइम पहुँचती हूँ सुनने के लिए. मैं हमेशा लेट पहुँचती हूँ. Sometimes I'm getting late for church क्योंकि मेरा परिस्थिति ऐसा है, because my situations are like that. हमारा घर में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है. Because we get water in our house only every alternate day. तो एक संडे मुझे लेट आना ही पड़ता है. So every other Sunday I have to come late to church. हाँ, जब भी पानी अगर टाइम पे छोड़ दिया तो मैं टाइम जल्दी आ जाऊँगी, अगर लेट छोड़ा तो लेट हो जाता है. If the water comes on time, then I'm able to come to church on time. If it comes late, then I come late to church. तो आज भी ऐसा ही था. तो मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जो भी है वो मुझे यहाँ पे आने की शक्ति देता है. So today was the situation where the water came late, and I want to thank God that no matter what my situation is, I'm able to come to church on time. मैं इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ. So that's why I want to thank God. जब मैं आया था तब मैं ये वचन सुन रही थी. डेविड जब गोलियत को ये ख़त्म करने जाने वाला तो उसने सारा सामग्री जो है उसको दिया गया तो वो ले लिया है.
उसके बाद उसने अनकंफर्टेबल फील किया. When I just entered the verse that was being shared was that David took whatever things that were offered to him by Saul to go into battle, but then when he put on his that armor, he felt uncomfortable. जब वो बात सुना तो मेरा अंदर ऐसा हुआ, क्यों अनकंफर्टेबल फील हुआ. Then I was thinking, why was David feeling uncomfortable? क्योंकि इसके पहले उसने परमेश्वर का सामर्थ को देख चुका है. Because before that David had seen what was God's power. वो जब भी बच्चा था, जवान था, But when he was a boy or when he was a youth, वो जंगल में अपनी पिता का जो भेड़ों को चराता था. and he used to take his father's sheep for grazing in the jungle. वहाँ पे भालू आया There a bear had come, और शेर आया a lion had come, और उन बछड़ों को लेके वो भाग जाता था, खत्म करने के लिए कोशिश करता था. and they were coming to attack the sheep. फिर भी वो बच्चा था, जवान था, तभी भी वो उतना बड़ा शेर से वो लड़ने की सामर्थ्य रखा है. And although he was just a young boy, he had the strength to fight against a lion. और उसको ये पता था वो सामर्थ्य उसका नहीं था. And he also knew that strength was not his. वही किरण ब्रदर ने भी गवाही दिया है, उसकी गवाही था. And that same thing, brother Kiran also was sharing that was his testimony. उसका अनुभव था. That was his experience. उन भयंकर शेरों के साथ लड़ना To fight against a ferocious lion. वो इजी नहीं था. It's not easy. अपना जान भी खो सकता था. He could have even been killed. लेकिन परमेश्वर के कारण But because of God, वो भी बचा और अपनी देखभाल करने वाले बछड़ों को भी बचाता रहा. that he was saved, and also he was able to save the sheep that he was taking care वो of. अकेला चराता था. He used to be उसका सॉरी he used to take care of his sheep alone. उसके साथ कोई भाई नहीं था. No other brother used to go with him. उसका एबशाई का सारा बच्चा आर्मी में काम करते थे. All his other brothers were working in the army, ये अकेला था, भेड़ों को चराता था. and he alone used to take the sheep for तो grazing. वहाँ पे उसको परमेश्वर का अनुभव हुआ. And there he experienced God. तो हम भी परमेश्वर को हमारा पर्सनल लाइफ में अनुभव करेंगे. And so we also will experience God in our own personal lives. तो हम भी उसी तरीक़ा से चलने की हिम्मत रखेंगे. And we'll also have the courage to walk just like David walked. वो ऐसा होगा. And it will be like this. Romans Romans 12 दूसरा वचन में. Romans 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. हिंदी. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो. हाँ, हम यदि इस संसार की मर्यादा से चल रहे आज भी, तो हम संसारी अनुभव है. यदि हम इस संसार के अनुभव से मर्यादा से नहीं चल रहे, तो हमको परमेश्वर का अनुभव कहीं ना कहीं परमेश्वर वो दिखाएगा. If we are walking according to this world, then we will experience the things of this world. But if we don't walk according to this world, then we will experience what God has to show for us. इस संसार की मर्यादा हमें ये सिखाती है, जब तुम युद्ध पे जाते हो, तुम हथियार पहनो. The discipline of this world will teach us that when you go into battle, you have to go armed with your weapons. तुमको पहनना चाहिए सारा हथियार, नहीं है तो दुश्मन तुमको तुम्हारे ऊपर वार कर सकता है. You need to put on the armor, otherwise the enemy will attack you. लेकिन परमेश्वर का आत्मिक हथियार जो है, हमको लिखा है गलेशियंस. But the spiritual weapons that God has given us is written in 22. Galatians 5 verse 22. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं. और परमेश्वर कहता है हमारा दुश्मन कोई भाई बहन नहीं है, कोई शरीर नहीं है.
God tells us that our enemy is not a brother or sister, not somebody. कोई फैमिली मेंबर नहीं है, It's not a family member. कोई अधिकारी नहीं है। It's not someone who is in authority. हमारा दुश्मन अंधकार शक्तियाँ है, Our enemy is the powers of darkness, जो हमेशा इस संसार की मर्यादा से चलने के लिए एंकरेजमेंट करता है। which will always encourage us to walk according to this world. इस संसार को एक मोटिवेशन की तरह हमारे सामने रखता है। It will keep the world as a motivation for us. लेकिन परमेश्वर कहता है, But God says तुम अपने जीवन में that in your own life, आत्मिक हथियार पहने रहेगा हर वक्त। that you should put on the armor of Christ. तो उस दुश्मन को, And that enemy, उस शत्रु को हम जीत सकता है, then we can defeat that enemy. जैसा कि डेविड ने जीता। Just like David conquered his बस उसने enemy. 5 पत्थर उठाया, 5 पत्थर उठाया, He picked up 5 stones from the river, एक ही काम आया। but he needed only one. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ पे उसने बोला मेरा परमेश्वर मुझे देगा, आज इस व्यक्ति को मेरा हाथ में देगा। और जाने से पहले ही उसने कह दिया है, आज मेरा परमेश्वर इस व्यक्ति को मेरा हाथ में देने वाला है। Because before he went into battle, he had already told that today God is going to deliver Goliath into my hands. तो आपके सामने जो भी सिचुएशन है, So whatever situation is there before you, यदि आप आत्मिक हथियार पहन के रहते हो if you're putting on the spiritual armor and weapons, और कहते हो and then say, आज ये समस्या, and say that this problem or this इस अंधकार difficulty, शक्ति, this power of darkness, इस बीमारी, this sickness, इस परिस्थिति जो भी है, this situation, whatever it मेरा is, यीशु के सामने in front of my Jesus, और मेरा यीशु के नाम से, and in the name of my जो Jesus, क्रूस पे विजय हुआ, the one who conquered हर एक बात के ऊपर, on the cross, हर एक इस संसार की मर्यादा के ऊपर, over every powers of this और world, वो विजेता देगा। he is victorious. तो हमें आत्मिक हथियार पहन के रहना बहुत ज़रूरी है। So we need to keep on wearing the armor, spiritual Thank you. armor. Thank you. जो कुछ भी ब्रदर जोसेफ, ब्रदर किरण सिस्टर से सुना, बहुत ही प्रोत्साहन था। So whatever we heard from Brother Joseph and Brother Kiran was very encouraging, और बहुत अच्छा शेयरिंग था। and it was very good sharing. एक बार ऐसा हुआ कि मेरी डॉटर ने पूछी, डैडी क्या आपका लड़ाई कभी रियल में शैतान के साथ हुआ है क्या? One day my daughter asked me that, Daddy, did you ever really fight with the devil? तो मैं बोला बहुत अच्छा सवाल पूछा है, And I said, yeah, you asked me a very nice question. क्योंकि उन्होंने एक क्रिश्चियन का मूवी देखा था, उसमें उन लोग ने शैतान का फाइट देखा था, तो इसलिए मुझे पूछ रहे थे कि डैडी क्या आपके साथ रियल में डेविल के साथ फाइट हुआ है क्या? Because they had seen a Christian movie and they had seen a scene similar to that, and so that's why they asked me, Daddy, did you also have a fight with the devil? तो मैंने बोला हाँ मेरे साथ हुआ है। वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, ये अब आगे का स्टोरी और एक्साइटेड है, क्या हुआ रहेगा। So it was very exciting, and I was very excited कि what is the story ahead. So मैंने उनको बताया And I told them कि इस फाइट के अंदर गॉड ने मुझे हेल्प किया विन होने के लिए, जीतने के लिए, विजय पाने के लिए। इस फाइट के अंदर, इस लड़ाई के अंदर गॉड ने मुझे हेल्प किया कि मैं विन हो जाऊँ। So I told them that in this fight God has helped me to win it. और हर एक लड़ाई मेरे प्रिय भाई, बहुत सारा चीज़ हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को हम छोटा समझते, इसीलिए सामने वाला चीज़ हमको बड़ा देखता हम डर जाते हैं। In many things, in many fights, we don't consider God, or we consider God to be very small, and that's why we are not able to win many fights. जब हम हमारे मन में ये जानेंगे कि परमेश्वर हमारा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, तो जो प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो वो बहुत छोटा लगेगा, और तुम्हारी भाषा जो निकलेगा ना, विश्वास की भाषा निकलेगा, ना कि डिस्करेज, ना कि अविश्वास की बात है, अभी क्या होएगा, अभी कैसे होएगा। When we consider God to be big, to be more powerful as compared to our situation, then our language also will change. Our language will be a language of faith, and we will be able to see that God can help us overcome that situation.
विश्वास एक इफिसी चैप्टर 6 में 16 में लिखा है। About faith, it's written in Ephesians chapter 6, verse 16. 13 में पढ़ता हूँ 13 से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। It says, and above all, taking the shield of faith, which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. और 16 में एक फ्रेज दिया है, विश्वास क्या चीज़ है। उसमें लिखा है कि उन सब के साथ विश्वास का डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलती हुई तीरों को बुझा सको। And in verse 16, it tells about what faith is. It says that faith is a shield for us, which can quench the fiery darts of the wicked one. विश्वास को यहाँ पर डाल बताया गया है। Here, faith is described as a shield. तुम्हारा हर एक प्रतिदिन जीवन में डिस्करेजमेंट आता है, कभी बैड मूड आ जाता है, बहुत सारा चीज़ आता है। So every day we may face so many situations, something discouraging us, some bad mood. तो शैतान क्या कर रहा है, वहाँ पर वो तीर फेंक रहा है, बट यहाँ पर लिखा है कि हम विश्वास करोगे परमेश्वर पर, वो एक डाल बन जाएगा। And so all these things are like fiery darts, and if we take our faith, it will be like a shield against these fiery darts. कभी कभी हम ऐसा फेस करते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं। Sometimes we may face a situation that the person who's speaking to us doesn't speak to us respectfully. बल्कि हमको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा टाइम आता है कि हम डिस्करेज हो जाए, अरे ये मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, मेरे तो अच्छे से बात कर रहे थे। We may feel discouraged and think that why is this person talking to us like this? लेकिन उस टाइम पे हमको परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो परमेश्वर वो डाल बन जाएगा हमारे लिए। In that time, if we have our faith in Christ, that will become like a shield for us. विश्वास एक डाल है। So our faith is like a shield. So वो विश्वास पे ये मत रखो कि हम बहुत सारा चीज़ हमको ब्लेसिंग मिलता है, अच्छी बात है, बट वो विश्वास रखो जो संसार पर हमको जय दिलाता है, चाहे डिस्करेजमेंट हो, बैड मूड हो, अलग अलग चीज़ का हम सामना करते हैं। Maybe that faith is not something that will give us so many blessings, but it will help us to overcome so many situations in our life. प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही आनंद और खुशी की बात है कि 4 महीने बाद मैं आज फिर से आप लोग के सामने आप सब लोग के बीच में आ चुके। पिछली बार मैंने गवाही दी थी जब मैं इससे पहले के कॉन्ट्रैक्ट में गया था कि मुझे कोई ऐसे बॉस मिले थे जो कि थोड़ा टफ़ था, और मेरा क्योंकि इस जो कंपनी में मैं काम कर रहा था पहला कॉन्ट्रैक्ट था तो और भी टफ़ था क्योंकि सब चीज़ें नई थी तो समझने को बहुत वक्त लगता है। और परमेश्वर की दया से इस वक्त जब मैं शिप पे गया तो मुझे परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने वो फेवर दिया कि मेरे जो बॉस लोग थे उन लोग ने मेरा काम को अच्छे से देखा कि मेरा काम कैसा है, और उसको बहुत ही देख के समझा उनको कि मेरा काम किस तरह से है। तो मैं खाली यही बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को कि परमेश्वर का जो फेवर है वो परमेश्वर से आता है, और न कि एक मेरे 2 बॉस लोग थे जो मेरे 2 कैप्टन थे, उन दोनों ने मुझे एक परमेश्वर का मैं एक तरह से एक अनुग्रह समझता हूँ कि उनके ओर से मुझे ये फेवर मिला कि इन दोनों कैप्टन लोग ने मुझे रिकमेंडेशन दिया कि मैं कैप्टन बन सकता हूँ, जो कि इजी नहीं है। सो थैंक गॉड कि ये मुझे मेरे काम को उन्होंने इतना ये किया। दूसरी बात ये है कि मुझे हमेशा ये हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में मुझे बहुत ही कठिनाई आई थी, लेकिन हमको उस समय भी संयम बनाए रख के काम करना चाहिए था, जो कि मैंने किया। पर अभी इस समय पे मैंने काफ़ी अप्रिशिएशन भी देखा, लेकिन जब अप्रिशिएशन आता है तो बहुत आसानी से हमें एक लुभापन होता है, जैसे कि बहुत ही ईजीली हमारे अंदर एक ईगो या प्राइड आ जाता है कि अरे वाह मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस समय में हमें ये हमेशा याद रखना है कि जब हम काम करते हैं तो किसी व्यक्ति या मनुष्य के सामने के लिए नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि ऐसे काम करना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारे ऊपर हमेशा
नज़रें रखे रखता है, और हमारा काम जितना बहुत ही अच्छी तरह से निखर के आता है जब हम ये अपने दिल में रखते हैं कि ये परमेश्वर के लिए हम काम कर रहे हैं, और वो भले लोगों को दिखे या नहीं दिखे पर परमेश्वर हमारी हृदय को जानते हैं, तो वो ही सबसे बेस्ट रहता है, मुझे ऐसा लगता है। और धन्यवाद कि परमेश्वर ने, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो काम था वो सादा काम नहीं था, मतलब ये सिर्फ इस 4 महीने में सिर्फ शिप चलाने का काम नहीं था, बहुत ही बड़ा मेजर रिपेयर वर्क हुआ है हमारा शिप पे। 2.5 महीने के लिए हम लोग चाइना में थे एक ही जगह पे, और पूरा शिप को निकाल के खोल विल के पूरा अच्छी तरह से रिपेयर किया गया है। इस समय ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, लेकिन इस रैंक में फ़र्स्ट टाइम मैं कर रहा था। सबसे बहुत बड़ा सक्सेस इस काम को लेकर ये होता है कि हम सभी लोग जैसे आए थे वैसे अपने घर पे वापस चले गए। इसका मतलब कि सब स्वस्थ रहे, किसी को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और ये सब काम का जो साझा जो भी देखना रेखना है वो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने रखी हुई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे सारे क्रू जितने भी मेरे अंडर काम कर रहे थे, और इवन सिर्फ मेरे ही क्रू नहीं, जो लैंड के जो चाइना के जो लोग काम कर रहे थे वो सभी लोग स्वस्थ थे, क्योंकि बहुत आसानी से एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि काम बहुत ही ऐसा गंभीर वाला काम है कि बहुत रिस्क होता है उसमें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की ओर महिमा से हम सभी स्वस्थ रहे। हम लोग हमेशा प्रार्थना करते थे कि हमारे, न कि मेरी सेफ्टी के लिए, न जबकि मेरे आजू बाजू जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो भी स्वस्थ रहे। तो थैंक गॉड कि आप सभी लोग ने भी प्रार्थना किया, नियति ने भी मेरे लिए काफ़ी प्रार्थना किया। और जस्ट आने के कुछ पहले ही भी, आने के थोड़े दिन पहले भी, मैं पहले 4 तारीख को आने वाला था पर थोड़ा डिले होते गया। पर परमेश्वर ने हमको ये भी सिखाया है कि जब हम किसी रीज़न से डिले होता है तो वो भी परमेश्वर की ओर से होता है। मैं 2 तूफ़ानों से बच के आ रहा हूँ, तो थैंक गॉड हमारे बीच में 2 तूफ़ान आए हुए थे। इस वक्त पैसिफिक ओशन में मौसम बहुत ही ख़राब है, तो हमको रुकना पड़ गया। तो कंपनी ने बोला रुकना पड़ेगा, आपको शेल्टर में जाना पड़ेगा। तो थैंक गॉड कि परमेश्वर ने हम सभी को उस बड़े से तूफ़ान में से बचाया है। सो थैंक गॉड फॉर दैट, प्रेज गॉड।